researchers take multiple scans and compare them to the images they took when she was just a few days old. This is a brain? This is a brain. Dr. Nahal Parikh is leading the study looking at the brains of premature babies from birth through childhood to understand how they're affected by different risk factors, including exposure to screens. What does this image tell you? It tells us a lot when we correlate it with these exposures such as screen time and we correlate it with development. It tells us whether or not those things are having an impact. میں ایک 15 سال کی لڑکی سوسائڈ کرتی ہے جب فائنینشیل پرابلمز کی وجہ سے اس کی ماں اس کو نیا موبائل فون نہیں خرید پاتی ہے. گڈ مارننگ دوستو آج ہم ایک ایسا ایشو ڈسکس کر رہے ہیں جس کے بارے میں لاکھوں پیرنٹس پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہمارے اسمارٹ فون ہمارے بیبی کو نقصان پہنچا رہا ہے. ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں فون کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے. فون کا استعمال ہم صبح سے شام تک ہر کام میں استعمال کرتے ہیں اور ہاں پریگننسی جیسے خوبصورت ٹائم میں بھی فون آپ کے پاس رہتا ہے. لیکن دوستو سائنس کیا کہتا ہے موبائل فون ریڈیشنز کے بارے میں اور اس کا کیا اثر پڑتا ہے ہمارے ہونے والے بچوں پہ اور جو بچے گرو کر رہے ہیں ان پہ کیا اثر پڑتا ہے. اس ویڈیو میں ہم لیٹسٹ ریسرچ ایکسپرٹ انسائٹس اور پریکٹیکل سٹیپس دیکھیں گے جو آپ اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے لے سکتے ہیں. چاہے آپ پریگننٹ ہو یا پریگننسی پلان کر رہے ہو یا بچوں کو پال رہے ہو, یہ انفارمیشن آپ کے فون یوز کرنے کا طریقے کو 100% بدل سکتی ہے. تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہے تاکہ ہم فیکٹس اور فیئر کو سپریٹ کر کے آپ کو ریئل ایکشنیبل آنسرز اور سولوشنز دے سکے. چلیے دوستو بیسک سے شروع کرتے ہیں. ہر بار جب آپ کا فون نیٹ ورک سے کنیکٹ ہوتا ہے تو وہ ریڈیو فریکوینسی الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ایمٹ کرتا ہے جس کو شارٹ میں RF EMF کہتے ہیں. پینک کرنے سے پہلے سمجھے سب ریڈیشنز ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. ریڈیشنز دو ٹائپ کے ہوتے ہیں, آئونائزنگ اور نان آئونائزنگ ریڈیشنز. دوستو آئونائزنگ ریڈیشنز جیسے ایکس ریز یا گاما ریز اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ ایٹمز کو بریک کر سکتے ہیں اور DNA کو ڈائریکٹ نقصان پہنچا سکتے ہیں. یہ بہت ہی ڈینجرس ہوتی ہے. جیسے کہ MRI مشینز, CT اسکین مشینز وغیرہ میں ایسی قسم کی ریڈیشنز استعمال کی جاتی ہے. دوسرا ٹائپ ہوتا ہے نان آئونائزنگ ریڈیشنز. نان آئونائزنگ ریڈیشنز جو آپ کا فون ایمٹ کرتا ہے بہت زیادہ ویک ہوتی ہیں. یہ DNA کو ڈائریکٹلی بریک نہیں کر سکتے ہیں یا DNA کو میوٹیٹ نہیں کر سکتے ہیں. فون سے نکلنے والی ریڈیشنز کی اسٹرینگتھ کو SAR اسپیسیفک ایبزارپشن ریٹ سے میجر کیا جاتا ہے. یعنی کہ باڈی پر ماس جو ٹیشو ہے ہمارا کتنے واٹس کی ریڈیشن ایبزارب کرتی ہے اس کو بولتے ہیں SAR. اسے میجر کیا جاتا ہے کہ باڈی کتنی ریڈیشن ایبزارب کرتی ہے. یہ جو SAR یہ بتاتا ہے کہ آپ کی باڈی نے فون سے کتنی انرجی ایبزارب کی, یعنی کتنی ریڈیشن ایبزارب کی. WHO یعنی کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور USFCC جیسی ایجنسیز نے سیفٹی لیمٹس ڈیسائیڈ کیے ہیں جو ٹپکلی 2 واٹس پر کلو گرام باڈی ٹیشوز ہیں. دوستو آج کے موسٹلی فون ان لمٹس کے اندر ہوتے ہیں, لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ لمٹس شارٹ ٹرم ایکسپوجر کے لیے اڈلٹس پر ٹیسٹ کر کے بنائے گئے تھے, نہ کہ لانگ ٹرم ایکسپوجر یا ڈیولپنگ فیٹس اور بچوں کے لیے جن کی باڈیز اور برینز بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے ایک اڈلٹ سے. دوستو جب آپ اپنے فون کو کان پہ لگاتے ہیں یا پاکٹ میں رکھتے ہیں, مطلب کہ سامنے والے پاکٹ میں ایبڈومن کے نزدیک رکھتے ہیں پریگننسی میں, تو وہ ریڈیشنز ڈیپ ٹیشوز میں پینیٹریٹ کرتے ہیں. یعنی کہ وہ ریڈیشنز جو آپ کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے اس کو بھی پینیٹریٹ کرتی ہے, یعنی کہ اس کے ٹیشوز کو بھی اثر کرتی ہے, ڈیمیج کرتی ہے. پریگننسی کے دوران آپ کا بیبی ایک انکریڈیبل ریٹ پر ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, یعنی کہ برین سیلز بہت ہی تیزی سے ملٹیپل ہو رہے ہوتے ہیں, نیورو کنیکشنز بن رہے ہوتے ہیں. اس سینسیٹیو ونڈو میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا ایکسپوجر بہت ہی خطرناک ایفیکٹس ہو سکتے ہیں بچے کے اوپر.
दोस्तों साल 2015 से 2019 में सबसे इम्पोर्टेंट स्टडी की गई ईरान में, स्टडीज का नाम यज़्द मदर एंड चाइल्ड कोहॉर्ट है। इस स्टडी में थाउजेंड्स प्रेग्नेंट वुमेन को फॉलो किया गया और रिजल्ट्स बहुत ही शॉकिंग थे। जिन महिलाओं ने प्रेगनेंसी में रोज 1 से 2 घंटे ज्यादा फोन यूज किया एज कंपेयर टू बाकी लेडीज, उन्हें सिग्निफिकेंटली हाई रिस्क थे, जैसे मिसकैरेज होना, मिसकैरेज के रिस्क थे, एबनॉर्मल बर्थ वेट यानी बर्थ के टाइम पर बेबी का वेट बहुत कम या बहुत ज़्यादा होना, उनके एबनॉर्मल बर्थ वेट, और एबनॉर्मल इन्फेंट हाइट और हेड सर्कमफ्रेंस यानी कि बच्चे का मतलब कि जो भी हाइट होगी हेड सर्कमफ्रेंस वो एबनॉर्मल होता है, नॉर्मल नहीं होता है। आप ग्राफ में देख सकते हैं कि जैसे ही प्रेग्नेंट लेडीज ने फोन यूसेज की ड्यूरेशन बढ़ाई तो इसके साथ ही प्रेगनेंसी रिस्क जैसे मिसकैरेज रेट्स और बर्थ कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। दोस्तों मोबाइल फोन रेडिएशन का असर बच्चा पैदा होने के बाद भी देखा गया है। DNBC यानी कि डैनिश नेशनल बर्थ कोहॉर्ट ने 13,000 से ज्यादा बच्चों को ट्रैक किया और कुछ इक्वली कंसर्निंग पाया। जिन मदर्स ने प्रेगनेंसी में मोबाइल फोन यूज किया और उनके बच्चों को माँ के पेट में ही मोबाइल फोन रेडिएशन का एक्सपोजर मिला, उनमें लेटर चाइल्डहुड में बिहेवियरल प्रॉब्लम्स दिखे, जैसे कि अटेंशन डेफिसिट यानी कि अगर वो बच्चा किसी एक चीज में ज्यादा टाइम के लिए रखा जाएगा वो उस पर अटेंशन फोकस नहीं कर पाता, जैसे स्टडीज वगैरह में। डिलेड लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि नॉर्मली बच्चों को 1 से 2 साल के अंदर अंदर लैंग्वेज डेवलप हो जाती है, ऐसे बच्चों में वो 3 से 5 साल भी ले लेते हैं मतलब कि लैंग्वेज डेवलप करने में। हाइपर एक्टिविटी इश्यूज होते हैं इन बच्चों में, इमोशनल और सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं। ऐसे बच्चों में सुसाइड की टेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों सितंबर 2024 रायपुर में एक 15 साल की लड़की सुसाइड करती है जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से उसकी माँ उसको नया मोबाइल फोन नहीं खरीद पाती है। आप समझ सकते हैं कि कितनी छोटी सी चीज के लिए मतलब अपनी कीमती जान बच्चे लेते हैं आजकल। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, मई 2025 हैदराबाद के गांव सैदाबाद में जब एक लड़के को पेरेंट्स ने एक्सेसिव फोन देखने पर थोड़ा डांटा तो उसने घर के टेरेस पर खुद को फांसी लगा दी। दोस्तों मुझे याद है कि हमारी जैसी जनरेशन्स को अपने माँ बाप डांट तो बहुत छोटी चीज है, बहुत कुछ करते थे, आपको भी पता होगा वो चीज। लेकिन आप देखते हैं कि आजकल जिन बच्चों को ये बचपन से ही रेडिएशन एक्सपोजर हुआ है उनमें जो हाइपर एक्टिविटी देखने को मिलती है, उसकी वजह से उनका जो सब्र है, उनका जो पेशेंस लेवल बिल्कुल खत्म हो चुका है, वो मतलब कि बिल्कुल हाइपर एक्टिव हो चुके हैं। दोस्तों ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स या फिगर्स नहीं है, ये रियल बिहेवियरल चेंजेस है जो चाइल्ड के स्कूल परफॉर्मेंस, सोशल रिलेशनशिप्स और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों और गहराई में देखते हैं कि मोबाइल फोन रेडिएशन बेबी के डेवलपिंग ब्रेन को कैसे इफेक्ट कर सकती है। प्रेगनेंसी में खासकर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी कि फर्स्ट 3 मंथ्स में, आउट ऑफ 9 मंथ्स जो पहले 3 मंथ होते हैं उस ट्राइमेस्टर में बेबी का ब्रेन सबसे रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा होता है अपनी लाइफ में। ब्रेन सेल्स बहुत ही तेजी से, बहुत ही ज्यादा फास्ट रेट पर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, न्यूरल प्रिकर्सर सेल्स डिवाइड हो रहे होते हैं और अलग अलग ब्रेन स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए माइग्रेट हो रहे होते हैं, सिनेप्टिक कनेक्शंस फॉर्म हो रहे होते हैं। लिटरली आपके चाइल्ड के माइंड का आर्किटेक्चर बन रहा होता है। ये बच्चे का बहुत ही नाजुक टाइम होता है। चिल्ड्रन के ब्रेन्स और अडल्ट के ब्रेन्स इनमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। जो चिल्ड्रन के ब्रेन्स है वो अडल्ट के ब्रेन से ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। जो चिल्ड्रन का स्कल होता है यानी कि जो सर का जो बाहर वाला जो बोनी स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही थिन, बहुत ही पतला होता है, अनलाइक ब्रेन्स जो अडल्ट में पाए जाते हैं। जो चिल्ड्रन के ब्रेन्स होते हैं उनमें ज्यादा वाटर कंटेंट होता है और उनके सेल्स एक्टिवली डिवाइड हो रहे होते हैं। ये इनके डेवलपिंग न्यूरल टिश्यूज को ज्यादा ससेप्टेबल बनाता है एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स
जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी मोबाइल फोन रेडिएशंस के लिए। डायरेक्ट इफेक्ट के साथ साथ मोबाइल फोन रेडिएशंस बेबी को इनडायरेक्टली भी इफेक्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रेगनेंसी में माँ का एक्सेसिव फोन यूज करना उसके हेल्थ को हार्म कर सकता है, जो इनडायरेक्टली बेबी को भी इफेक्ट कर सकता है जो उसके पेट में पल रहा होता है। चलिए जानते हैं कि एक्सेसिव फोन यूसेज से मदर्स को कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। नंबर 1, स्लीप डिसरप्शन यानी कि नींद कम आना। स्मार्टफोन स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट मेलाटोनिन प्रोडक्शन सप्रेस करती है। मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो ब्रेन में मौजूद पीनियल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है और जो स्लीप वेक साइकिल यानी ह्यूमन बॉडी में सोने और जागने का साइकिल रेगुलेट करता है। प्रेग्नेंट लेडीज जो सोने से पहले फोन यूज करते हैं सही से सो नहीं पाती, मतलब उनको बिल्कुल कम नींद आती है। तो पुअर स्लीप की वजह से इन्फ्लेमेशन इंक्रीज होती है, जिससे हार्मोनल बैलेंस डिस्टर्ब होता है और बेबी के लिए ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी रिड्यूस होती है। जो उसको ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए पेट में वो कम हो जाती है। नंबर 2, स्ट्रेस एंड एंजाइटी। दोस्तों, कांस्टेंट फोन कनेक्टिविटी यानी सोशल मीडिया चेक करना स्ट्रेस हार्मोन जैसे मैटरनल कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन हार्मोन्स इंक्रीज करते हैं। एलिवेटेड मैटरनल स्ट्रेस हार्मोन्स प्लेसेंटा से क्रॉस करते हैं और फीटल डेवलपमेंट इफेक्ट करते हैं। स्टडीज हमें दिखाती है कि क्रोनिकली स्ट्रेस मदर्स ऐसी बेबीज को जन्म देती है जिनके स्ट्रेस रेस्पॉन्स ऑल्टर्ड होते हैं, यानी बेबीज जो ज्यादा रोते हैं, कम सोते हैं और सेल्फ सूथ करने में स्ट्रगल करते हैं। नंबर 3, रिड्यूस्ड फिजिकल एक्टिविटी। दोस्तों, प्रेगनेंसी में जो डॉक्टर्स है या गायनेकोलॉजिस्ट है वो प्रेग्नेंट वुमेन को रेस्ट के साथ साथ हल्की फुल्की फिजिकल एक्टिविटीज में अपने आप को इंडल्ज करने के लिए जरूरी एडवाइस करते हैं। लेकिन वुमेन जो पूरा दिन अपने फोन के साथ चिपक के होते हैं, कम मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के दौरान गेस्टेशनल डायबिटीज, प्रीक्लैम्सिया और ऑफस्प्रिंग्स में यानी कि बच्चों में डेवलपमेंटल डिलेज होते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये है कि इन मोबाइल फोन रेडिएशंस के एक्सपोजर से बचने के लिए क्या करना चाहिए। क्या हमें फोन यूज करना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए या इसी खौफ में हमें जीना चाहिए? बिल्कुल नहीं दोस्तों। अगर हमें कुछ करना है वो है हमें अपने लाइफस्टाइल में कुछ कॉन्शियस चेंजेस करने की जरूरत है। जैसे नंबर 1, डिस्टेंस कहते हैं, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि डिस्टेंस इज योर बेस्ट फ्रेंड। दोस्तों, आपका फोन जितना दूर आपकी बॉडी से होगा उतने कम रेडिएशंस आप एब्जॉर्ब करते हो। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, यानी रेडिएशंस इंटेंसिटी क्विकली डिक्रीज होती है जैसे ही फोन बॉडी से दूर हो जाता है। जैसे कि ये फोन जो है जितना मेरे नजदीक होगा उतना रेडिएशन एक्सपोजर बढ़ जाता है, और जैसे ही मैं फोन को हल्का दूर ले जाऊंगा तो उससे तेजी से रेडिएशन एक्सपोजर कम होती जाएगी। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए अपने फोन को पेट से एटलीस्ट 6 से 12 इंच दूर रखना चाहिए। फ्रंट पॉकेट में फोन बिल्कुल भी कैरी नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बिल्कुल एब्डोमेन के नजदीक होता है, तो उससे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है बच्चे को। जी हाँ। नंबर 2, यूज हैंड फ्री ऑप्शंस। जब आप फोन अपने कान पे लगाते हो बात करने के लिए तो जो ब्रेन टिश्यूज है वो मैक्सिमम रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, तो मैक्सिमम डैमेज होता है। इसके बदले हमें क्या करना चाहिए? इसके बदले हमें स्पीकर फोन्स, वायर्ड हेडफोन्स, एयरपॉड्स या ब्लूटूथ हेडसेट्स यूज करने चाहिए। नंबर 3, लिमिट कॉल ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी। दोस्तों, प्रेगनेंसी में जैसे कि लेडीज अक्सर रेस्ट पे होती है तो उनके पास बहुत टाइम होता है, बहुत ज्यादा है, तो वो ऐसे ही खामखा फोन लगाकर घंटों तक गप्पे लगाते हैं। हमें अननेसेसरी लंबी बात नहीं करनी चाहिए ताकि कम से कम टाइम तक रेडिएशन एक्सपोजर हो। नंबर 4, एक्टिवेट एरोप्लेन मोड ड्यूरिंग नाइट।
रात को नींद के दौरान अपने फोन को एरोप्लेन मोड में स्विच करना चाहिए ताकि अननेसेसरी रेडिएशन एक्सपोजर से बचा जाए। दोस्तों, मान लो अगर हम 6, 7 या 8 घंटे सोते हैं तो वो 7-8 घंटे हम फोन को एरोप्लेन मोड में डाल के जो वो 24 घंटे में से 8 घंटे यानी कि 1/3 ऑफ द डे 33% हम वैसे भी रेडिएशन एक्सपोजर को कम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों। नंबर 5, चूज योर फोन वाइजली। दोस्तों, डिफरेंट फोन डिफरेंट रेडिएशन लेवल्स इमिट करते हैं। फोन खरीदने के वक्त उसके SR रेटिंग चेक करनी चाहिए। कुछ मोबाइल फोन्स कंसिडरेबली लेस रेडिएशन इमिट करते हैं दूसरे फोन से। नंबर 6, लिमिट स्क्रीन टाइम फॉर चिल्ड्रन। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने बच्चों के स्क्रीन टाइम के बारे में कुछ रूल्स बनाए हैं, जैसे कि अप टू 2 years, 2 साल तक 0 स्क्रीन टाइम पर डे होना चाहिए, यानी कि 2 साल तक के बच्चे को बिल्कुल मोबाइल फोन हाथ में नहीं देना चाहिए। मतलब कि एक्सेप्शनली अगर कभी वीडियो चैटिंग वगैरह होगी तो वो 2 से 5 साल तक मैक्सिमम 1 घंटे का स्क्रीन टाइम पर डे होना चाहिए। 5 से 10 साल का जो बच्चे होंगे उनको मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटे का स्क्रीन टाइम पर डे होना चाहिए। 11 से 13 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको मैक्सिमम 2 घंटे का स्क्रीन टाइम पर डे से ज्यादा अलाउड नहीं होना चाहिए। Dr. John Hutton is at the forefront of this fast developing field, and he's published several studies that already suggest higher levels of screen time can impact a child's growth. One result that keeps showing up, parts of the brain related to reading, language, and decision making are often weaker in kids who have more screen time. So what are parents and caregivers to do? These experts say try not to introduce any screen time before age 3. दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है तो वो है सारे सिंपल स्ट्रेटजीज और प्रिकॉशंस जो हमने अभी इस वीडियो में जाने, उनको अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है ताकि हम अपने अनबॉर्न बेबीज और ग्रोइंग चिल्ड्रन को सेफ कर सकते हैं और साथ ही साथ मोबाइल कनेक्टिविटी का भी पूरा फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि आपकी फैमिली के साथ साथ उनकी फैमिली भी सेफ हो सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।